یہ آکاشوانی سری نگر ہے، پیش ہیں خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ملک میں آج سے 3 نئے فوجداری قوانین کا اطلاق۔ نئے قوانین کی بدولت انصاف کی فراہمی کے نظام کو بنایا گیا ہے آسان۔ لوک سبھا دونوں ایوانوں کے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے مشترکہ خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث شروع۔ حکومت کے کام کو کیا گیا اجاگر۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری، اب تک لگ بھگ 50,000 یاتریوں نے گفا میں دی حاضری، اور آکاشوانی سری نگر آج منا رہا ہے اپنا 76واں یوم تاسیس۔ خبریں تفصیل سے۔ ملک میں آج سے 3 نئے فوجداری قوانین لاگو ہو گئے۔ بھارتی نیائے سنہتا 2023، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا 2023 اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم نامی ان 3 قوانین نے پہلے سے موجود انگریزوں کے دور کے 3 قوانین کی جگہ لی ہے۔ ان قوانین کی بدولت ملک کے فوجداری جوڈیشل نظام میں جدت آئے گی اور متعلقین کو وقت پر انصاف حاصل ہوگا۔ ماہرین کے مطابق ان منفرد قوانین کے اطلاق سے ملک میں تاریخ پہ تاریخ روش ختم ہو جائے گی اور ایسا نظام وجود میں آئے گا جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 3 برسوں کے اندر انصاف کی یقینی فراہمی ممکن ہو جائے گی۔ نئے فوجداری قوانین انصاف پر مبنی ہیں، نہ کہ سزا پر۔ کچھ نئے جرائم کو پہلی مرتبہ قانون کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ ان قوانین میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے لیے 35 سیکشن رکھے گئے ہیں۔ 13 نئے مدوں کے ساتھ ساتھ کچھ ترامیم بھی شامل کی گئی ہیں۔ جدید کاری پر مبنی جسٹس نظام کو تقویت بخشنے کے لیے ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی گنجائش رکھی گئی ہے اور آئندہ 50 برس کے دوران ٹیکنالوجی اور اختراعات کی تبدیلیوں کو نظام میں شامل کرنے کی گنجائش ہے۔ ای ریکارڈز، زیرو FIR، ای FIR کے علاوہ چارج شیٹ بھی اب ڈیجیٹل ہوں گے۔ پولیس کی طرف سے کی جانے والی تلاشی کارروائی کے لیے ویڈیوگرافی کو لازمی قرار دیا جائے گا اور جنسی زیادتی کے متاثرین کا ای سٹیٹمنٹ بھی قبول کیا جا سکے گا۔ علاوہ ازیں کورٹ میں آڈیو ویژول ریکارڈنگ بھی پیش کی جائے گی۔ پورے ملک میں ایک یونیفارم جسٹس نظام وجود میں لایا گیا ہے۔ جوڈیشل عمل میں جدت لانے کے ساتھ ساتھ مختلف سطحوں پر بہتر تال میل کو یقینی بنایا گیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کو مستحکم کیا گیا ہے اور ملک کی یکجہتی، سالمیت، سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی کے مخالف کاموں کو بھی دہشت گردی کے زمرے میں لایا گیا ہے۔ قوانین کی روح سے تمام قانونی عمل کو ملک کے آئین کی 8ویں شیڈول میں شامل زبانوں میں مشتہر کیا جائے گا۔ کڈنیپنگ، ڈکیتی، گاڑیوں کی چوری، لوٹ مار، جسم فروشی کے لیے انسانی نقل و حمل کو اب منظم جرائم کے زمرے میں لایا گیا ہے۔ دریں اثر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین جو آج سے لاگو ہوئے ہیں کی بدولت ملک میں کرمنل جسٹس نظام میں زیادہ سے زیادہ حد تک جدید کاری یقینی بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرمنل جسٹس نظام اب مکمل طور سے سودیشی ہے اور ان کی جڑیں ملک کی روایات اور آزادی میں پیوست ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا کو ان قوانین کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان قوانین سے انصاف کی تیز تر فراہمی یقینی بنے گی اور متاثرین کو مناسب حقوق حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے صرف پولیس کے حقوق کو تحفظ حاصل تھا، لیکن اب متاثرین اور شکایت دہندگان کے حقوق کو بھی تحفظ حاصل ہوگا۔ جموں کشمیر میں بھی آج سے ان 3 نئے قوانین کا اطلاق شروع ہوا۔ اس ضمن میں PHQ سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انفرادی آزادی اور انسانی حقوق پر مبنی یہ قوانین انسانیت کی اقدار پر مبنی انصاف کے نظام کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوانین کے ذریعے سے لائے گئے اصلاحات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم پسماندہ طبقوں کو تحفظ دینے اور سب کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کتنے پرعزم ہیں۔ LG نے کہا کہ بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم کی بدولت صدیوں پرانی نو آبادیاتی نظام کو توڑنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے قوانین کے تحت مساوات کو یقینی بناتے ہوئے سب کو انصاف فراہم ہوگا۔ اس تقریب پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس این کوتیشور سنگھ، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈائریکٹر پولیس RR سوین اور کئی دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے مشترکہ خطاب پر شکریہ کی تحریک پر آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث ہوئی۔ لوک سبھا میں BJP کے ممبر پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے عوام کی بہبود اور معیشت کی رفتار بڑھانے کے لیے پچھلے 10 سال میں سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر لایا گیا ہے اور سرکار نے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت 80 کروڑ افراد کو مفت اناج فراہم کیا
किया है। साबिका यूपीए सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उस वक्त मईशत 5 कमजोर मईशतों में शामिल थी, लेकिन अब मुल्क 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क बन जाएगा। एक और मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने कहा कि किसानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और पीएम किसान स्कीम के तहत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की रकम किसानों में तकसीम की गई है और कई गजाई अजनास की कम से कम खरीद कीमतों में भी इजाफा किया गया है ताकि किसानों को राहत मिल सके। इधर राज्यसभा में आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन अरकान की तरफ से पेश किए गए इल्तिवा के नोटिस नामंजूर कर दिए। बाद में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस शुरू हो गई। बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन के लीडर मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि खिताब में एक नजरियाती बयान होना चाहिए था और इसका तज़किरा होना चाहिए था कि चैलेंजों से किस तरह निपटा जाएगा, लेकिन खिताब में इस तरह की निकात या रहनुमाई का फुकदान है। अपोजिशन इंडिया ब्लॉक ने आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया और सरकारी एजेंसियों ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। इस एहतजाज में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों के दीगर सीनियर लीडरों ने शिरकत की। वो जेल में बंद एएपी वज़रा की रिहाई का भी मुतालबा कर रहे थे। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा खुशगवार मौसम के बीच खुश उसलूबी और एहसन तरीके पर पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी है और यात्रा शुरू होने से अब तक लगभग 50,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि आज दोनों रास्तों से 18,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। दरी असना 6,461 यात्रियों का एक और जत्था आज भगवती नगर जम्मू से वादी की तरफ रवाना हुआ। नुमाइंदों ने खबर दी है कि नुनबन और बालतल के बुनियादी कैंपों में यात्रियों का काफी रश है, तहम इंतजामिया ने यात्रियों की आसाइश के लिए हर तरह के इंतजाम किए हैं और यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। आकाशवाणी श्रीनगर आज अपना 76वां यौम तासीस मना रहा है। नशरियात के इस अहम इदारे ने 1 जुलाई 1948 को अपना सफर पोलो ग्राउंड श्रीनगर से शुरू किया। जब से लेकर आज तक इस इदारे ने नशरियात के आला तकाजों को पूरा करते हुए लोगों तक जिंदगी के हर एक शोबे के बारे में जानकारी पहुंचाई। पहले इदारा रेडियो कश्मीर श्रीनगर के नाम से जाना जाता था, तहम 2019 में जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट की अमल आवरी के बाद इस इदारे का नाम आकाशवाणी श्रीनगर रखा गया। आकाशवाणी श्रीनगर ने लोगों तक कश्मीरी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी और बल्ती जुबानों में मियारी खबरों के बुलेटिन पहुंचाने के साथ साथ ज़राअत, खेलकूद, तिब, नौजवानों, बच्चों, खवातीन और मूसीकी समेत दीगर मखसूस जुमरों के मियारी प्रोग्राम तैयार करके लोगों को महसूस कराया। आकाशवाणी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक घरेलू नाम है और इसे जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों के लाखों सामीन की पजीराई हासिल है। मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब सतीश विमल ने आकाशवाणी की यौम तासीस के मौके पर इस नशरियाती इदारे की अहमियत और सामीन के साथ रिश्तों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। आज जब हम आकाशवाणी श्रीनगर का यौम तासीस मना रहे हैं, हम असल में उस रिश्ते का जश्न मना रहे हैं जो रिश्ता पिछले 75 से ज्यादा साल से हमारा अपने सामीन के साथ बना हुआ है। रेडियो ने अपनी पहली अनाउंसमेंट से ही यहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और वो जगह आज तक कायम है। मवासलाती दौर में डिफरेंट एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म्स दस्तयाब होने के बावजूद मुल्क के इस खित्ते में रेडियो की एतबारियत और वकार अभी तक कायम है। लोग रेडियो आज भी सुनते हैं उसी तरह जिस तरह 75 साल पहले सुना करते थे। रेडियो की आवाज आज भी नुमाइंदगी करती है आम लोगों के दिलों के, जज्बात के, एहसासात के, उनके धड़कनों के साथ धड़कता है हमारा माइक्रोफोन पे जाने वाला हर एक लफ्ज। ये रिश्ता कायम रहे, इसी जश्न को हम आज भी मनाएंगे और कल भी।
पूरे मुल्क में आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 1 जुलाई को इंसानी खिदमत में डॉक्टरों के रोल को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। मुल्क के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी इस ताल्लुक से खास तकारीब का एहतमाम किया गया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरा के ऑडिटोरियम में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर हबीबुल्लाह जरगर इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने इस तकरीब में मेहमान जी वकार की हैसियत से शिरकत की। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने स्कीम्स के कामकाज का तफसीली खाका पेश किया। इस तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने लोगों तक मियारी तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात पहुंचाने में डॉक्टरों के कलीदी रोल को उजागर किया। प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो अपनी पेशेवराना सलाहियतों को बरूए कार लाकर मरीजों को इलाज और मुआवजे की बेहतर सहूलियात बहम पहुंचाने में कोई भी दकीका फरोगजाश न करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों के दिन के मौके पर तमाम डॉक्टरों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि यह दिन मुल्क की सेहत की देखभाल करने वाले हीरोज की नाकाबिल यकीन लगन और हमदर्दी का एहतराम करता है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत भारत में सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और डॉक्टरों को वसी पैमाने पर इज्जत हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में डॉक्टरों के रोल की सताइश करते हुए उन तमाम डॉक्टरों को मुबारकबाद दी है जो बेलौस तरीके पर लोगों की खिदमत करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते। उन्होंने डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो मजीद तनदेही और लगन के साथ ये फराइज अंजाम देकर जरूरतमंदों की खिदमत करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि खलीफा दौम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स मुबारक के पेश नजर ज़ायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात बहम रखें। ये उर्स मुबारक 4 जुलाई को मनाया जा रहा है। अली सागर ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल के साथ साथ दीगर जियारत गाहों और बुक़जात में बिजली, पानी, तिब्बी निगहदाश्त, सफाई सुथराई, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी पर जोर दिया। इम्तिहान के इनेकाद से मुतल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए ने दोबारा नीट यूजी इम्तिहान के बाद आज 1563 उम्मीदवारों के नजरसानी शुदा नताइज का ऐलान किया है। एनटीए ने नए नताइज के ऐलान के बाद सभी उम्मीदवारों की दर्जाबंदी में भी तब्दीली की है। एक बयान में एनटीए ने कहा कि सभी उम्मीदवारों के नजरसानी शुदा स्कोर कार्ड वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 813 उम्मीदवारों ने दोबारा इम्तिहान दिया था। उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने मुतल्लिका नजरसानी शुदा स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशिनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।